ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। प्रस्तुतिकरणको विषय छ जीवन नदी आध्यात्मिक काव्यात्मक विश्लेषण। एक, मोहन चेतनाको जन्म। हरेक नदी हिमालको मुहानमा जन्मिन्छ, धेरैलाई खबरै नपाई चुपचाप बग्न थाल्छ। मानव जीवन पनि यस्तै, एक श्वाससँग यात्रा सुरु हुन्छ अनि संसारले हामीलाई बिस्तारै चिन्छ। बग्ने दिशा, कर्म र निर्णय। कहीँ पर्खाल फुटाएर नदी आफै बाटो बनाउँछ, कहीँ चट्टानले मोडिदिन्छ उसको दिशा। हामी पनि आफ्नै कर्मले कहिले बाटो बनाउँछौँ, कहिले समय परिस्थितिले मोडिन्छन् मार्ग। तर मुख्य कुरा, बग्ने निर्णय नदी आफैले लिन्छ, बाँच्ने निर्णय मनले लिन्छ। छाल, बहार, झर्ने झरना, सुख दुःखको तालमेल। मौसम जस्तै नदीको रूप बदलिन्छ, कहिले शान्त कहिले उग्र। जीवन पनि त त्यही हो, सुखको समथर मैदान, दुःखका तीखा ढुङ्गा, वैचित्र्यपूर्ण मोडहरू। तर नदीको महान सत्य ऊ कहिल्यै रोकिँदैन। हामी पनि यदि रोक्यौँ भने जीवन नदी होइन पोखरी बन्छ। किनाराका बस्ती, समन्दर प्रवाह। नदी बग्दै गर्दा खेत सिँचाइ गर्छ, बस्तीलाई जीवन दिन्छ, कहीँ पुल बन्छ कहीँ घाट। मानव जीवन पनि त्यस्तै, हाम्रो उपस्थितिले कसैको मन हरियाली हुन्छ, कसैले आशा पाउँछ, कसैले मार्ग पाउँछ। यसैले त भनिन्छ नदी भए जस्तै बग, जहाँ पुगे पनि केही अर्थ छोड। अन्तिम गन्तव्य, समुद्र, मृत्युलोक। कति मोड लियोस्, कति ढुङ्गामा ठोकियोस्, कति ठाउँमा वेग बढोस् वा घटियोस्, नदी अन्त्यमा समुद्रमै मिसिन्छ। जीवन पनि त्यही सर्वसत्यको बाटो हो, जो सृष्टिले दिएको अन्तिम अङ्क। कोही मुस्कुराउँदै पुग्छन्, कोही डराउँदै, कोही नबुझेर पुग्छन्, कोही पूर्ण बोधका साथ पुग्छन्, तर पुग्ने कुरा निश्चित छ। महान सत्य, यात्रा नै जीवन हो। नदीको महानता समुद्रमा पुग्नमा होइन, उसले बाटो भरिदिएको जीवनमा छ। मानव जीवनको अर्थ पनि त्यही, अन्त्य होइन, मार्ग कस्तो बगिरह्यो भन्नेमा हामीलाई छनौट छ। कस्तो नदी बन्ने, शान्त, उग्र, अर्थपूर्ण अथवा दिशाहीन। सबै बाटा समुद्रमै जान्छन्, तर बग्ने शैलीले जीवनको इतिहास लेखिन्छ। लाइफ रिभर, स्पिरिचुअल पोएटिक एनालाइसिस। The source birth of consciousness. Every river is born from the spring of the mountains. Unnoticed by many, it quietly begins to flow. Human life is the same. Our journey begins with single breath, and the old slow begins to recognize us. Direction of our flow, karma and decision. Sometimes the rivers break through walls to carve its own path. Sometimes rocks bend and redirect its course. We too sometimes shape our path through our actions, and sometimes time and circumstance shift our direction. But the essential truth is the river decides how it will flow, and the mind decides how it will lie. Waves, currents, and waterfalls, harmony of joy and sorrow. Like the season, the rivers constantly change its form, sometimes calm, sometimes fierce. Life mirrors is the smooth plan of happiness, the sharp tones spurring, the unpredictable scarps of fate. Yet the great truth of the river is this: it never stops falling, and it will stop. Life ceases to be a river and becomes a stagnant pond. Settlements along the banks, relationship and influence as river flows, irrigates fields, gives life and settlements, becomes a breeze somewhere, resting place somewhere else. Human life is no difference. Our presence brings greenery to some hearts, give hope to others, and show direction to the few. Thus it is said, flow like a river, and leave meaning wherever you reach. The final destinations, the oceans, realm of faith. No matter how many turns it takes, how many rocks it strikes, how many places it slows or speeds, a river ultimately merges into the sea. Life follows the same universal truth. The final chapter written by existence itself. Some reach there smiling, some hearing, some without understanding, and some with complete realization, but reaching it is certain. The great truth, the journey is the life. The greatest of the river doesn't lie in reaching the oceans, but in all the life it nurtures along the way. The meaning of human life is the same, not in the end, but in how the path was lived. We have a choice.
What kind of river do we become? Calm, fierce, meaningful, directionless. All river reach the sea, but how we flow writes history of life. जीवन नदी आध्यात्मिक काव्यात्मक विशेषण है। स्रोत चेतना का जन्म। हर नदी पर्वत के स्रोत में जन्म लेती है, हर एक तर्क को बिना बताए चुपचाप बहाना शुरू कर देती है। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, एक श्वास के साथ यात्रा शुरू होती है और संसार धीरे धीरे हमें पहचान सिखाता है। बहने की दिशा, कर्म और निर्णय। कभी नदी दीवारों की चिर कर अपना मार्ग स्वयं बनाती है, कभी चट्टानें उसकी दिशा मोड़ देती है। हम भी कभी अपने कर्मों से रास्ता बनाते हैं और कभी समय परिस्थिति हमारे मार्ग बदल देती है। लेकिन मुख्य सत्य ये है, बहने का निर्णय नदी स्वयं लेती है और जीने का निर्णय मन स्वयं करते हैं। लहरें, प्रवाह और झरने, सुख दुख का सामंजस्य। मौसम की तरह नदी का रूप बदलता रहता है, कभी शांत कभी प्रचंड। जीवन भी ऐसी है, सुख के समतल मैदान, दुख की नुकीली चट्टानी और विविध प्रकार के मोड़। लेकिन नदी का महान सत्य यही है कि वो कभी रुकती नहीं। यदि हम रुक गए तो जीवन नदी नहीं, एक ठाड़ा हुआ पोखर बन जाता है। किनारों की बसेरे, समंदर और प्रवाह। बहते बहती नदी खेतों की भी सिंचती है, बस्तियों को जीवन देती है, कहीं पुल बनती है, कहीं घाट। मनुष्य जीवन भी ऐसा ही है, हमारी उपस्थिति किसी के मन को हरियाली देती है, किसी को आशा देती है और किसी को दिशा दिखाती है। इसलिए कहा जाता है, नदी की तरह बहो और जहाँ पहुंचो वहां कुछ अर्थ छोड़ जाओ। अंतिम गंतव्य, समुद्र। कितने भी मोड़ आए, कितने भी चट्टानें टकराए, कितने भी गति बदले, नदी अंत में समुद्र में ही मिलती है। जीवन भी उसी यूनिवर्सल सत्य का मार्ग है, जो सृष्टि द्वारा दिया गया अंतिम अध्याय है। कोई मुस्कुराते हुए पहुंचता है, कोई डरते हुए, कोई बिना समझे और कोई पूर्ण बोध के साथ पर पहुंचना निश्चित है। महान शक्ति, यात्रा ही जीवन है। नदी की महानता इस बात में नहीं कि वो समुद्र तक पहुंची, बल्कि इस बात में है कि उसे रास्ते भर कितने जीवन दिया। मानव जीवन का अर्थ भी यही है, अंत में नहीं बल्कि मार्ग कैसे जिया गया उसमें हमारे पास चुनाव है। हम कैसी नदी बनी, शांत, प्रचंड, अर्थपूर्ण और दिशाहीन। सभी रास्ते समुद्र की ओर ही आ जाते हैं, लेकिन बहने की शैली जीवन का इतिहास लिखती है। This is my research study. The ideas presented here are suggestive and it is advisable to verify them with authentic sources if necessary. We are together on the journey toward peaceful life. I welcome and suggestion if there are mistakes in writing. Thank you. Link